session is being recorded. This is Sibur Rahman, and today you are learning modal verbs. Last class we had an introduction, and yes, Manal, take class. I don't mind. I don't mind anything. This is something very bad in me. I don't mind. We use should plus base form of verb to talk about obligation. We use should plus base form of verb to talk about obligation. Obligation means any kind of responsibility which you have. You have to do something, right? But must plus base form of verb is stronger than should plus base form of verb. It means that you have to do it at any cost. If I'm saying you should help others, okay, it's your obligation, responsibility to help others. But if I say you must help others, it means that you have to do it at any cost. This is a stronger one, right? You have to do. You must help others. I would say should is a younger brother and help is a elder brother. Should is a younger brother and must is a elder brother. शुड बात करता है जिम्मेदारी की, मस्ट भी बात करता है जिम्मेदारी की। जब जिम्मेदारी ज्यादा अहम है तो मस्ट, थोड़ी कम है तो शुड। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ना भी उठो, नो प्रॉब्लम। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड ऑफर प्रेयर। लेकिन कुछ जो पक्के और सच्चे मुसलमान, वी मस्ट ऑफर प्रेयर। यू शुड हेल्प पुअर पीपल। You should help poor people. अब कुछ लोग जो ह्यूमैनिटी से ज्यादा प्यार करते हैं, they will say you must help poor people, right? We must recite the Holy Quran. This is the stronger responsibility, stronger one. You must pay utility bills on time. Yes, a stronger one. You must drive carefully. You must abide by traffic rules. People must follow SOPs. ये उस दौर में लिखा गया है जब कोविड चल रहा था, राइट? कोविड तो खैर कभी चल ही नहीं रहा था, ड्रामा चल रहा, जब कोविड का ड्रामा चल रहा। So people must follow SOPs. You must abide by traffic rules. अब देखिए ना, ट्रैफिक रूल्स की आप पाबंदी नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा। SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, नुकसान आपका होगा। यूटिलिटी बिल्स, you have to pay them, right? So that's why you are saying you must pay utility bills on time. तो जहां पर आपको लगता है कि उर्दू मीनिंग्स अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं लाजमन ऐसा करना चाहिए, तुम्हें लाजमन बड़ों का एहतराम करना चाहिए। You must respect elders, ठीक है ना? तुम्हें उससे तमीज से बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम पोलाइटली, ठीक है? इफ यू आर टॉकिंग टू हिम इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, इट्स ओके, बट यू शुड टॉक टू हिम पोलाइटली। अब ये एक इस्तेमाल था जिम्मेदारी, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं वी कैन आल्सो यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज अ गुड आइडिया, and must plus base form of verb to say that something is the best idea. We can also use should plus base form of verb to say that something is a good idea. आपका 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया, कराची यूनिवर्सिटी में और IBM में। बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है बताइए? What is Sir, the IBA. IBA is the best option. IBA is the best option. And Karachi University is a good idea. चलो ठीक है, if you join Karachi University, it's okay. That's not a problem. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? You should join KU, you must join IBA. अम्मी ने 2 तस्वीरें दिखाई मुझे, एक सारा 1, एक सारा 2। सारा 1 के बारे में सुनिएगा। Sarah one, she belongs to
a middle class family. She has two younger sisters, and she has one elder brother. He is working somewhere, and he also has one more younger brother. Five siblings, like they are. A father is a government officer, mother is a housewife. Right? Sarah two के बारे में सुनिएगा. Sarah two, she is the only daughter, but she has one brother. He lives in Australia, and he is studying there and also doing job. Father is CEO of a company. He is the managing director in the company, and they have their own house, 1,000 yards, and Sarah is studying in IBM. अब best idea क्या? Best Sarah too. Sarah too. Sarah number 2. असामी कौन सी डाइट है? सारा टू. सर ये असामी डाइट है, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी. तुम्हारी लाइफ ऐसे सेट है. You must marry Sir Sarah too. मतलब सर Sarah 2. ऑस्ट्रेलिया का चक्कर नहीं लगता. ठीक है. लेकिन सर देखें, अगर वो आप you should marry Sarah 1. If Sarah 2 disagrees, then you can go with Sarah 1. That's not a problem. That's not a problem. I want to go Lahore. How should I go? मुझे कैसे जाना चाहिए? What is the best idea? Best You idea. must go by there. Best idea क्या है? You must go by You air. must go by air. I want to Airplane, go right. to Lahore. How should I go? How should I? Sir, I want to go to Lahore. How should I? Sir, the good idea is that you should go by train. But the best idea is that you must go by train. If you are in a hurry, you have to go in a meeting, you must go by train. But if you have time and if you have time, then you should go by train. You will have a good time. आगे बात समझ. We use shouldn't plus base form of verb to say that something is a bad idea, and mustn't plus base form of verb to say that something is prohibited, not allowed, unlawful. हम shouldn't plus base form of verb का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम ये कहते हैं something is a bad idea. Something is a bad idea means नहीं. देखो बेटा नहीं. नहीं बेटा, देखो ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है. अब अगर मैं ये कह रहा हूँ ये बेहतर नहीं है, यू शुड नॉट. नहीं बेटा, तुम्हें उससे गाली नहीं देनी चाहिए बेटा, देनी चाहिए. तुम्हें उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए. You should not abuse him. You should not misbehave. You should not. You should not go alone. It's 1 a.m. You should not go alone. It's not a good idea. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि लोगों के लिए क्या चीज बुरी है, तो अब आप लोग कहना शुरू करेंगे people should not. अब आप लोगों को बैड आइडिया क्या है? आप लोगों की नजर में बैड आइडिया क्या है? people should not. जुमला बना सकते हैं आप लोग. सर हैंड रेज करें. बाकी यस सारा. people should not. People should not. People should not wait for the bus. People should not wait for the Bus. bus. अच्छा, क्यों है? People shouldn't interfere in other Yeah, life. yes. I agree with this statement. आगे, people should not.
people should not think negative. People should not think negative. each other. Uh, people shouldn't. People shouldn't discourage other. discuss. People should not, People shouldn't discuss other family matters. yes. Or People shouldn't discourage others. Yes, shouldn't Yeah, discourage well, upcoming generation. excellent. People should not discourage others. People should not have fast food every day. It's a bad idea. People should not. People should not. Yes, people should not. People should not. People should not. Disturb. People shouldn't disturb. People should not take this much time in speaking. अच्छा, अगर मैं people की जगह लगाऊं students, अब वो कौन सा काम है जो students के लिए बेहतर नहीं है? Yes, Manal. Students should not. Sir, I was going to say that people should not hear what people should not believe what they hear. People should not believe in hearing. Just always believe in seeing. Sir, people should not interfere in the other lives or Yeah, other people should family not- members. Yeah, especially people should not Students interfere in shouldn't. others' life. Okay, and Sir, yes, Students Students shouldn't- outside from the students should not. Sir, outside from the class and Students should discuss not anything. stay outside the class. It's a bad idea. Stay outside. Yes. Should not stay Yes, outside. students. Yes, Students Sir. should not stay up late at night. the students shouldn't stay late at night because they have to go to school and college. Okay. Students Students should should not not come to school late. Okay. Shouldn't. students shouldn't waste their time by playing games. Yes, students should not waste their time while playing. Yes. Students should not use a mobile phone. Students should not watch porn literature. That's very sad. Students must not. Students, must not. Students should not. Must not. Okay. आगे चल. Must should not के बाद आ रहा है must not. Must not कहते हैं must not plus base form of verb to say that something is prohibited. Something is not allowed. It means that अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बहुत बुरी बात होगी. You must not take a day off. It means that you are not allowed to take a day off. Are you getting my point? Yes, sir. You are not allowed to take a day off. The students must not. You must not drive wrong way. You must not drive wrong way. Wrong way. Must not drive wrong. It's not allowed. आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे. Yes. In classroom, you must not make a noise during the lecture. Yeah. During the Muslims must During not the- drink. Student, अच्छा देखो इसमें must not में वही चीज लेकर आना जहां पर जो चीज हराम है, ममनू है, मना है, उस okay. जगह पर बना है. जरा बात को समझना, गहराई को समझना. Muslims must not drink. You must not Sir. drive wrong way. अब देखो drive wrong way हराम नहीं है, लेकिन कानूनन मना है. Mana hai. You must not smoke here. You समझो you बात. must not write on the wall.
समझ ले, You must. बीबी आप थोड़ा सा समझ ले, यू मस्ट नॉट स्मोक, हराम नहीं है सिगरेट पीना, लेकिन जिस Yes. जगह को मैंने मेंशन किया है उस जगह पर पीने से सख्ती से मना किया गया, खुद भी उड़ेंगे, पूरा पेट्रोल पंप भी उड़ाएंगे। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। अब एक बच्चा, यस, Students must not shout in the library. हाँ, अब देखिए, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी क्वाइट, तो यू मस्ट नॉट शाउट। आप जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए, आपकी जो है वो बेगम जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है, और आप बाहर खड़े हुए हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, दोस्तों से फोन पे बातें कर रहे हैं, तो एक सिस्टर, भाई यू मस्ट नॉट शाउट हियर, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना, या कोई रो रहा है, यू मस्ट नॉट क्राई हियर, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, प्लीज टेक हिम आउटसाइड, टेक हर आउटसाइड, राइट। यू मस्ट नॉट, अब देखिए Yes. एक जगह आपने देखा होगा पार्किंग का निशान होता है, उस पर पी लिखा होता है, उस पर क्रॉस लगा होता है, मतलब गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है। और यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, यू मस्टंट पार्क योर कार हियर, इट मींस दैट इट इज नॉट अलाउड। और देखिए कितना मिलती जुलती हमारे दिमाग में, मैंने लाइब्रेरी की भी मिसाल दी है, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, इट इज नॉट अलाउड टू मेक अ नॉइज इन लाइब्रेरी। तो मस्ट नॉट का इस्तेमाल आप सोच समझ के कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप वहां, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का गला खराब है, ठीक है ना, अब वो 7 अप पी रहा है, आप उसको कह सकते हैं क्या, You must not drink cool drinks. You must Drink you must cold not drink. take you cool are, drinks. it means that he is not allowed by a doctor, Yes. he is not, अब ये थोड़ी नहीं कि हराम है या ममनू है, नहीं, he is not allowed, he is not allowed to smoke Allowed. by a doctor। आगे बात समझ, In the class, student Yes, must not write on the chair. या यू मस्ट नॉट, जैसे अक्सर क्लासेस में होता है उन्होंने बाकायदा पाबंदी लगाते, यू मस्ट नॉट राइट Yes. ऑन द चेयर, व्हाइटों से लिख देते हैं ना, On the अपना नाम लिख chairs. देते हैं H+R, मैं तो लिखता हूँ H, student must not misbehave with teachers. या स्टूडेंट्स Yes. must not misbehave with the teacher, with teachers, you are absolutely right। Okay. आगे चलिए, You. सर आप चलिए ना, हम ना should in question, we can also use should plus base form of verb in question for advice। हम should का इस्तेमाल question में भी करते हैं, और जब करते हैं जब हम किसी किस्म की नसीहत लेते हैं, और देने में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, should I keep teaching online? मैं आप लोगों से एक सवाल, Yes, Sir, sir. please repeat this in You Urdu. should. मैं आप लोगों से एक नसीहत दे रहा हूँ, नसीहत आप छोटे से भी ले सकते हैं और बड़े से भी ले सकते हैं, क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ाते रहना चाहिए? Should I keep Yes, sir. teaching online? Yes, sir. You should. Yes, sir, you should keep it. You should, Yes, sir. you should keep, yes sir, you should keep on teaching। Should Sarah get married to Ali? Sarah से पूछे, Yes. No, sir. Yes. She get. Sarah is in the class, Sarah, tell, should Sarah get married to Ali? क्या सारा को Should we inform Sir सारा के Hasbi? दिमाग में तो कोई पूछ नहीं रहा, दूसरों से पूछे। आजकल के ये बेटा पुराना दौर है ना, पुराने दौर में ऐसे होता था, लड़की से पूछा नहीं जाता। Should Sarah get married to Ali? Yes, Ali is a very handsome boy and he is very rich person. He has a lot of money, so Sarah should get married। Should we inform क्या Sir? हम बात कर सकते हैं? Should we inform Sir Haseeb? क्या हमें Sir Haseeb को inform Yes. करना चाहिए? Yes, sir. We should. But what Must about? inform. This is very important. This is very important। Yes. जैसे आजकल आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ना, मतलब लोग
जो है वो उल्टी सीधे लोग भी आ जाते हैं ना, अपनी मस्जिदें भी खड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कोई आपके नंबर चुरा कर आपको मैसेजेस कर रहा हो, तो शुड वी इन्फॉर्म सर दैट शी इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस। तो हर इंसान अपना रिस्क लेकर आता है, तो लेट हर डू, वो उसके अमल है, उसके सामने है। आप किसी का रिस्क किसी से छीन नहीं सकते। When should I apply for visa? अब जैसे when should I apply for visa? मुझे ना आपकी जो क्लास है ना, कि आप डिस्कशन क्लास में चले हैं, ये लेवल 2 की क्लास चल रही है, बदहजमी हो जाएगी आपको। मुझे ना, मैं आपको भेज रहा हूँ क्लास, डिस्कशन क्लास में, ठीक है, वहां चलिए। उसकी मेरी क्लास होगी 9 से 10 तक। ये लेवल 2 की क्लास है, मतलब ये बच्चे 4 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको डिस्कशन क्लास में भेज दिया। Should I keep teaching? हो गया। So when should I apply for visa? अब जैसे अक्सर बच्चे आते हैं, so when should I apply for visa? First, clear your IELTS. Once you have cleared your IELTS, then you should apply. Okay. How should I write a letter? How should I write a letter? Look, most of the many students take advice. Sir, how should I write a letter? मुझे लेटर कैसे लिखना चाहिए? How should I read this novel? How should I read this sentence? और जब आप डॉक्टर Yes. आपसे बात करेगा तो आपको डेफिनेटली नसीहतें कर रहा होगा, और जब वो नसीहतें करेगा तो सारी नसीहतें उसकी किसमें होंगी बताइए? सारी नसीहतें उसकी होंगी शुड के। ठीक है बेटा, अब आ जाए Should must। can. अब आ जाए मस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मस्ट क्वेश्चन में क्या होता है? We can also use must plus base form of verb in question when we want to know if something is absolutely necessary. अच्छा, मस्ट का क्वेश्चन मैंने कम देखा है, लेकिन बनाया जा सकता है। It is possible to use must in question. It is possible, and it is, but it is used quite less situations are there. जैसे for example, must I wear mask at public places? लोग इसको इसी तरह से ज्यादा बेहतर बोल देते हैं, should I wear mask at public places? Must I put on formal dress? Yes, it is compulsory. Right? जैसे किसी ने कहा you must put on formal dress, तो उसने कहा must I put on formal dress? Yes, it is compulsory. Otherwise, they will not let you in. Okay. Must I keep identity card? Yes. Must we invite Sarah? No, no need. Must Sir Hasib take an extra class? कहीं बेहद जरूरी है कि Sir Hasib extra class take? No, if he is free, he can take it. Otherwise, no problem. अब must का इस्तेमाल एक और भी, must का इस्तेमाल एक और भी है। कौन सा है सर? मस्ट को लोग बॉसी भी समझते हैं। जैसे आप बड़ी बहन है, अब आप छोटी बहन से जब बात करेंगी तो आप मस्ट पे करेंगे, लेकिन छोटी बहन ने अगर आपके ऊपर मस्ट लगा दिया, चाटा रख दीजिएगा, तमीज नहीं है तुम्हें बड़ी बहन से बात करने की, नालायक, बेशरम। यू मस्ट स्टे एट होम, यू मस्ट गिव मी योर सेल फोन, बड़ी बहन छोटी बहन से, यू मस्ट गिव मी योर सेल फोन। ऑर्डर, बॉसी, आपका जो बॉस है वो मस्ट इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। अब वो बात, अब जरा सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यू मस्ट टाइप इट अगेन, ये आप किसने बोला? जो बॉस ने बोला। किसने बोला? बॉस। यू मस्ट। Boss ने. जब आप इसी बात को घर जाकर किसी को बताएंगे तो बताइए कैसे बोलेंगे? Sir, what? यू मस्ट टाइप इट अगेन। अब इसी बात को आपने घर जाकर मम्मा को बताया, मेरे बॉस ने ना मुझे ये कहा, आई हैव टू टाइप इट अगेन, आई हैव टू टाइप इट अगेन। यू मस्ट टेक क्लासेस एवरी डे, यू मस्ट टेक क्लास ऑन टाइम। अब आप अपने घर वालों से क्या कहेंगे? भाई आई हैव टू टेक क्लास ऑन टाइम, सर ही गेट्स एग्री। Yeah. मस्ट क्लीन सर हम ऐसे नहीं,
सर हम ऐसा नहीं कह सकते सर हसीब said us you must नरेशन नहीं have to पढ़ना take your है, नरेशन नहीं पढ़ना, अभी नरेशन नहीं, अच्छा सर अभी तो सिंपल आसान आसान अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आई हैव टू, मस्ट और हैव टू में डिफरेंस बता रहा हूँ। जब आपके ऊपर कोई मस्ट इस्तेमाल करेगा तो आप अपने, जब आप उसकी बात को रिपीट करेंगे तो हैव टू में करेंगे। अभी आएगा मस्ट और हैव टू, आगे तो और क्लियर हो रही है बात। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैंने पढ़ा दिया शुड और मस्ट, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। शुड प्लस शुड मस्ट प्लस स्ट्रेट वर्ब, बच्चा बी मिस कर जाता है। सरसीप को क्लास होना चाहिए, सरसीप शुड इन द क्लास, मतलब शुड के बाद बी की एप्लीकेशन नजर नहीं आती। सरसीप शुड बी इन द क्लास, सरसीप शुड बी इन द क्लास। बी का इस्तेमाल बच्चा यहाँ स्किप कर जाता है। यू अली शुड एट होम, अरे बी तो लगो, अली शुड बी एट होम। बी का मतलब होना, सबने बचपन में पढ़ा है ना स्टेट वर्ब्स, अली को घर पे होना चाहिए। Yes. दे शुड बी गुड एट इंग्लिश इफ दे वांट दिस जॉब, उन्हें अंग्रेजी में अच्छा होना चाहिए अगर उनको ये नौकरी चाहिए। दे मस्ट बी गुड एट इंग्लिश इफ दे वांट दिस जॉब। यू मस्ट बी 18 इफ यू वांट NIC, ऐसा ही है ना, यू मस्ट बी 18 if you want NIC, NIC. You must have passport if you want to go abroad. अब देखें बी और हैव आ गया, ये स्टेट वर्ब आ गया। आपके पास लाजमन, आपके पास लाजमन पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? yes sir She must have good qualifications if she wants a good job. उसके बाद लाजमन उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए अगर उसे नौकरी चाहिए। She must have good qualifications if she wants a good job. आगे बात समझिए। एक चीज और है, अच्छा आप मस्ट और हैव टू। अब ये जो मस्ट और हैव टू है, बदल भी तो नहीं हो रही ना, मेरी बात समझ आ रही ना आपको, शुड और मस्ट की। yes sir अब मैं मस्ट और हैव टू Yes, sir. मस्ट और हैव टू के ऊपर बात कर रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। You must do it and you have to do it. There's a difference between in both sentences. समझना डिफरेंस को। दो हैव टू भी बात करता है ऑब्लिगेशन की, मस्ट भी बात करता है ऑब्लिगेशन की। सर हैव टू तो हमने बचपन में पढ़ा था, अब इन दोनों का डिफरेंस पढ़ोगे। दोनों जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मस्ट बात करता है इनर ऑब्लिगेशन की और हैव टू बात करता है आउटर ऑब्लिगेशन की। सर ये इनर ऑब्लिगेशन और आउटर ऑब्लिगेशन क्या है? मस्ट बात करता है इनर ऑब्लिगेशन, ऐसी जिम्मेदारी जो जिसको आप अपनी जिम्मेदारी अपने दिल से समझते हैं। तो मैं जानना चाहता, उसके भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं जानना चाहता, वो बहुत परेशान होगी बेचारी, एक ही उसका भाई है, तो मैं जानना चाहता, जाओ जाकर पूछो उसके साथ, कोई मसला वसला ना हो, कोई पैसे वैसे का मसला हो तो मुझे बता दो, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए। यू मस्ट गो, ये फीलिंग्स है, दिल से बात निकल रही है, बाबा साई तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो। सारा मस्ट हेल्प हर यंगर सिबलिंग्स, जिम्मेदारी है, दिल से बात निकल रही है। सारा मस्ट हेल्प, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है। सारा मस्ट हेल्प हर यंगर सिबलिंग्स, जब देखो मोबाइल, 7 बजे मोबाइल उठाएगी, 6 बजे रात 11 बजे। सारा मस्ट हेल्प हर यंगर सिबलिंग्स। हाईवे पे जा रहे थे, मलिहा हाईवे पे जा रही थी, नई नई शादी हुई थी, रास्ते में देखा 2 मियां बीवी खड़े हुए, खून उनके सर से निकल रहा है, बच्चे भी 2 साथ हैं, उनके भी खून निकल रहा है। मलिहा ने कहा सुने हमें यहाँ रुकना चाहिए, तो उनकी बेगम, उनकी शौहर ने कहा तुम्हें क्या लग रहा है वो खून है? हाँ, जख्मी है। अभी डेमो दिखाऊंगा आपको, क्या कहना मतलब। अरे भाई ये आजकल ऐसे ही हो रहा है, अभी आप रुकेंगे तो उसके बाद गाड़ी में वो लोग चारों जा रहे होंगे, आप वहीं खड़े होंगे। अच्छा जी,
आप लेकिन देखिए आपके अंदर इंसानियत जागी। मलिहा ने कहा वी मस्ट स्टॉप हियर, हमें यहाँ लाजमन रुकना चाहिए। कोई कानून बाहर से नहीं आ रहा, कहीं पर बोर्ड नहीं लगा हुआ, कहीं पर वो चौकी नहीं बनी हुई है कि वहां पर लिखा हो ठहरिए शराब कराइए। आपने खुद ही अपने दिल से आप किया है हमें लाजमन यहाँ रुकना चाहिए। आपने देखा रात के 10 बज रहे हैं, फाइका ने कहा अबे यार 10 बज गए, अब्बा ने कहा था 10:30 पे नहीं आए ना तो मतलब मैं टांगे तोड़ के कीमे की मशीन पर डाल दूंगा और उस कीमे की चपली कबाब बना के तुम्हारी अम्मा मुझे खिलाएगी। भाई 10 बज गए, हमें अब लाजमत घर जाना चाहिए। इट्स 10 PM, वी मस्ट गो होम। अच्छा, ये आपको खुद एहसास है इस बात का, हमें लाजमत जाना चाहिए। इट इज 10 PM, आप अंदर से आपकी फीलिंग्स आ रही, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई मस्ट टेक अ डे ऑफ, मुझे लाजमत छुट्टी कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ वैसे, लेकिन अगर आपके दिल में ऐसी बातें आए तो आप मस्ट लगाए। जो अंदर से जिस बात को आप जिम्मेदारी समझते हैं ना, वहां पर आप मस्ट लगाते हैं। लेकिन अब देखिएगा, अब जो जिम्मेदारी आएगी वो लॉ है, ऑर्डर है, रूल है, बाप का हुक्म है, किसी का फरमान है, किसी की नसीहत है, किसी का हुक्म है। यू हैव टू गो टू बाय फ्रूट्स, तुम्हें फल खरीदने जाना है, यू हैव टू गो। क्यों भाई, क्या हो गया? अब्बा ने बोला बेटा, अच्छा ठीक है चला जाऊंगा। देयर इज अ चेक पोस्ट, रुकिए शनाख्त कराइए। अब आप मलिहा जा रही है, अब इनके शौहर क्या कहेंगे? वी हैव टू स्टॉप हियर या वी मस्ट स्टॉप हियर? वी हैव टू स्टॉप हियर। क्यों We have to stop. भाई? लिखा हुआ है ठहरिए शनाख्त कराइए, कहा जा रहे हैं? वी हैव टू स्टॉप हियर, हमें रुकना है। इट इज 10 PM। उबे उबे भाई, अब्बा ने कहा था। अब ये डैड्स ऑर्डर है बाकायदा, 10:30 बजे घर पर पहुंच जाना। ऊपर आपको खुद एहसास है भाई, देखो अब्बू को अच्छा नहीं लगता, अब्बू ने कहा तो नहीं लेकिन अब्बू को अच्छा नहीं लगता। नीचे वाले सेंटेंस में डैड ने कहा हुआ है भाई 10:30 बजे घर आ जाना वरना हड्डियां टूट जाएगी। आई हैव टू रीच होम। अबे भाई रुक जाओ ना थोड़ी देर। नहीं भाई नहीं, मुझे घर जाना है, इट्स 10 PM, मुझे घर पहुंचना है भाई। आई हैव टू रीच होम at any cost before 10:30. I have to pay utility bills. आपका दिल चाहता है बिल पे करने का, रेंट देने का दिल चाहता है आपको? दिल में ऐसे ख्यालात नहीं आते, लेकिन खैर आपका मालिक मकान बाहर निकाल देगा आपको। मालिक मकान ने बोला भाई पहली तो आप रेंट दे दिया करें। I have to pay utility bills. I have to pay salaries to my teacher. पहली से को दे देता हूँ। I have to pay salary to my all teachers on very first. I have to pay rent of my home on first. Right? ये नहीं कहता मालिक मकान से मेरे बच्चों की अभी तनख्वाही नहीं मिली है तो जमा कराएंगे तो फिर मैं दे दूंगा। वो होगा भाई नहीं भाई, पहली को तो किराया चाहिए, पहली को बिजली का बिल आया है, चौथी को जमा कराना पड़ता है। I have to pay utility bills. We have to submit presentation tomorrow. अब देखो बॉस ने क्या कहा होगा, जरा सीन चेंज कर लो। तुम ऑफिस में बैठे हो, बॉस तुमसे बात कर रहा है, यू सादिया, जी सर, सादिया यू मस्ट सबमिट दिस प्रेजेंटेशन टुमारो। ओके सर, एंड इफ यू डोंट सो प्लीज सबमिट योर रेजिग्नेशन लेटर। ओके सर। अब आप क्या कहेंगी? आई हैव टू सबमिट प्रेजेंटेशन टुमारो। क्यों? बॉस ऑर्डर, बॉस का ऑर्डर है। जब बॉस का ऑर्डर है तो भाई काम तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बेटा? चलिए आगे। आई हैव टू वेयर फॉर्मल ड्रेस इन ऑफिस, रूल है। जब आपने ज्वाइन किया था उन्होंने बता दिया था दिस इज आवर ड्रेस कोड, आई हैव टू वेयर फॉर्मल ड्रेस इन ऑफिस। आ रही है बात समझ? आप सोचे आपकी जिंदगी में कौन से काम हैव टू में होते हैं?
और एक सेंटेंस बना के सर ऑर्डर के तौर पर यू हैव टू कंप्लीट award list before date before 2 November this 2 नवंबर से पहले आपको ये करना है, एग्जाम की लिस्ट तैयार करनी है। I have to. We have to at I school. have We have to school at 7:45. अच्छा क्या होता है? I have to prepare food या I must prepare food? अगर सर ये हम अपने लिए करते हैं then we must prepare. लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स yes, और अगर किसी ने कहा है yes, आप जनरली बात कर रहा हूँ, have सब जो शादीशुदा खवातीन है, आप क्या कहेंगी? I must prepare food for my family. I have to prepare food for my family. I have to. मतलब आप इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती? आपकी I सास बोला है must बहू खाना बना लो, लेटी ना पड़ी रहो, हर वक्त लेटी रहती हो, जाओ जाके खाना बनाओ। अब आपकी सास ने बोला तो अब आप कह रही आई हैव टू। लेकिन अगर आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझती हैं तो फिर आप कहेंगे आई मस्ट, आई मस्ट, आई मस्ट। कभी भी मस्ट और हैव टू साथ में ना दबाव I have to submit my fee. I have to submit my fee on 30th October. receives order। Yes. आप पैसे सबमिट कराएंगे तो आप टीचर्स को देंगे। Yes. डोंट हैव टू प्लस सब सेंटेंस को यूज करेंगे। पैसा यहाँ आता है, यहाँ से आगे चला जाता है। अब देखा, पैसा हाथ का मैल, मनी कम्स टू गो। डोंट हैव टू प्लस बेस Yes. एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब समझना बेटा, अब नीचे मस्ट वर्ड है, ठीक है। डोंट हैव टू का मतलब क्या है? ठीक है, आप ना करें, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग। जैसे अक्सा को दावत पे हमने इनवाइट किया और अक्सा जो है वो फिर बर्तन धोने लगी, ओह यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग, बशीर विल कम। बशीर सर, our maid, he will come and he will do all this cleaning. You don't have to, just come and sit outside. होता है ना बड़े घरों में ऐसे, अरे छोड़ दे आप, बर्तन ही छोड़ दिए, खाना ही छोड़ दिया, बाहर जाके बैठ। You don't have to do this. Please come outside. जाओ शबनम ग्रीन टी लेकर आओ। जी खाम में लेकर। She does not have to go on Saturdays. जैसे आप ऑफिस की बात करें, I don't have to go on Saturdays. I don't have to teach on Sundays. मुझे इतवार को नहीं पढ़ाना होता। हाँ, लेकिन I can have an extra class if I want. I can arrange any seminar, workshop, anything like that. ठीक है ना? आगे चले। Sarasi does not have to take an extra class. Absence of obligation. लेना चाहे ले ले, it's not a problem. ठीक है? You must not talk to Sarah. You must not talk to Sarah. कर दूं बात उससे, देख फिर अपना हर्षद। तो मतलब it means that you are not allowed. Must not means not allowed. करके तो दिखाओ। You must not go out alone. You are not allowed. They must not park their car here. Not allowed. You must not drink. Prohibited. You must not smoke here. Not allowed. You must not smoke in the class. Not allowed. So must not हरगिज़ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कर ले अब देख ले, अगर आप must not और don't have to में डिफरेंस समझ आया, ठीक है, आप ऐसा कर ले, कोई मसला नहीं है। अरे आपको जरूरत नहीं है बर्तन धोने की, चले अब आपने धोना शुरू कर दिया तो धो ही दे। You don't have to do dish washing. मैं कर लूंगी, कमर में थोड़ा दर्द है, कर लूंगी मैं। अरे नहीं, मैं कर देती हूँ। हाँ बस आजकल कमर में बहुत दर्द है। अब सामने वाला कह रहा है चलो मैं, दिस इज द कोड वर्ड, एंड अब सामने वाला बर्तन सारे नीचे तो मुझसे झुका ही नहीं जा रहा। मैं लगा दूंगी पोछा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू मॉप, यू डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। नहीं मैं लगा दूंगी, बर्तन धोने के बाद पोछा भी लगा, हाँ झाड़ू भी लगाई लूंगी किसी तरह से। आप बस क्या क्या करेंगे।
We don't have to do this. It's an absence of obligation, right? आ गई बात समझ? बेटा don't have to clear हो गया? Mustn't clear हो गया? Yes, sir. आगे देखते कुछ और आपके लिए हो। Yes, sir. ओहो भाई, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ये लेक्चर आज का आखिरी बात है। ये अब्बू आ गए, ये शुड और मस्ट के अब्बू आ गए। हैड बेटर, हैड बेटर उर्दू में लिख ले अपने पास उर्दू में लिख ले, बेहतर होगा। ये बात करता है फ्यूचर, strongly advise. Yeah, strongly advised. और इसको review कर ले, submit. Strongly advise submit to do something. ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। We use had better plus base form of verb when we strongly advise somebody to do something. हम जब ये कहते हैं भाई देखिए आपके लिए बेहतर होगा, आप अपनी फीस सबमिट करवा दें। अगर ग्रुप से रिमूव कर दिया तो फिर दोबारा ऐड कर देंगे फीस जमा कराने के बाद, बस कर दो। If not obey, लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है, if not obey you will be responsible for the result. आप जिम्मेदार होंगे फिर नतीजे के। आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेहनत कर ले। यू हैड बेटर, सर ये हैड पास्ट की बात कर रहे हैं जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैड यहाँ पर बात कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके लिए बेहतर होगा आप चली जाए, यू हैड बेटर लीव। आपके लिए बेहतर होगा आप पढ़ लीजिए, फेल हो जाएगी ना खुद जिम्मेदार हो जाएगा। यू हैड बेटर स्टडी। आपके लिए बेहतर होगा सिगरेट पीना बंद कर दें, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। इसका इस्तेमाल थ्रेट के लिए भी किया जाता है। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, धमकी समझते हैं, थ्रेट। तुम्हारे लिए बेहतर होगा सारा को कॉल करना बंद कर दो, वरना क्या कर लेगा, वरना जान से जाएगा तो बेटा। यू हैड बेटर स्टॉप कॉलिंग सारा अदरवाइज, ये धमकी है। बेहतर होगा तो मेरे पैसे वापस कर दो, वरना बोलते ना, यू हैड बेटर पे माय मनी बैक अदरवाइज। तुम चुप हो जाओ, वरना क्या, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तो जाओ। यू हैड बेटर कीप क्वाइट अदरवाइज व्हाट, नथिंग। ठीक है, अदरवाइज लगा दिया तो ये धमकी की शक्ल इख्तियार कर लेना। हैड बेटर का नेगेटिव बन सकता है, देखिए हैड बेटर का नेगेटिव है, बिल्कुल I Yes, think yes. yes. लेकिन Had not, he better go home now. देखो नॉट कहाँ लगा हुआ है, हैड बेटर नॉट, हैड के बाद नॉट नहीं लगेगा। हैड बेटर नॉट, Not. बेटर नॉट टॉक टू हर। तुम्हारे लिए बेहतर होगा उससे बात ना करो भाई, बार आ जाओगे। उसके चार भाई है, चारों जिम जाते। सारा हैड बेटर नॉट ड्राइव फास्ट, सारा के लिए बेहतर होगा गाड़ी तेज ना चलाए। क्या इसका क्वेश्चन है? जी नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? फिर से क्वेश्चन भी बना देंगे, पहले इसका नेगेटिव क्वेश्चन देखिए। हेडेड ही बेटर गो होम नाउ, क्या उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो घर चली जाए? बोलते ना उर्दू में, क्या उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो आराम करे? Hadn't she better take rest? Because she is seriously ill. Yes, she had better take rest. बेहतर होगा आराम करे। अब had better का अगर क्वेश्चन बनाने का दिल चाह रहा हो तो देखो किस तरह से बनेगा। Should Sarah drive fast? Should Sarah drive fast?
Should I join KU? मैं ये नहीं कह सकता मैं हेड आई बेटर ज्वाइन नहीं। अब क्वेश्चन बनाना है तो हेड बेटर से क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। नेगेटिव क्वेश्चन पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल, लेकिन क्वेश्चन पॉसिबल है, नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है हेड इट ही बेटर। ठीक है, हेड बेटर का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है, हेड बेटर +1 बाई हमारे you had better be now going to discussion class। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम बस अब बेटा डिस्कशन क्लास में चलते रहो। हाँ जी सर जा रहे हैं 8 बजे। You had better be sleeping, you had better be, it's 1 AM, you had better be sleeping। तुम्हारे लिए बेहतर हो बेटा आप सोते हुए नजर आओगे। ठीक है, देखिए अब आपने क्या पढ़ा। You should go, तुम्हें जाना चाहिए। उसके बड़े भाई you must go, तुम्हें लालगंज जाना चाहिए। फिर आपने you must go पढ़ा, तुम्हें लालगंज जाना चाहिए। outer inner obligation, you have to go, अब्बा का ऑर्डर है, you have to go, you had better go, बेटा तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम चले जाओ, वरना भी बरबरा जाओगे मेरे यहाँ से। you should not go, you must not go, क्लियर हो गई दोनों। you should not go तुम्हें नहीं जाना चाहिए, you must not go तुम्हें हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और you don't have to go, ठीक है चले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। You had better not go, जाकर तो दिखा दो बेटा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मत जाना। तो क्या हो जाएगा, चली जाओगी तो मैं बोल दिया ना नहीं जाओगी तो क्या कर लोगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, जुमला बना रहा हूँ। ये मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली थी, मैंने इसमें पेस्ट कर दिए। PDF आपके पास आ रही है थोड़ी देर में, ये देखें। तो सब जैसे मैं सर ने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही ऐसा लग रहा है सर का पढ़ाया हुआ लिखा। ठीक है, वो अलग बात है, मैंने बाद में देखा था इसको। ठीक है, ये शुड आ गया, ये मस्ट आ गया, मस्ट और हैव टू का डिफरेंस आ गया, इसको भी पढ़िएगा। मस्ट वर्सेस हैव टू भी आ गया। मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैंने ही बनाएंगे और मेरे स्टूडेंट्स के लिए बने, तो मैंने ये यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम।